to say about Shobha Arya ma'am, and they have taken an initiative for mental health. What do you want to say about it? Because these days mental health is very important for everything. Like COVID gone, and now the situation is going very hard. So what do you want to say about it? And tell us about this initiative taken by Shobha Arya ma'am. Okay. I have always spoken from the heart. I think आप लोग मुझे जानते हैं for the past 28 years. When I started my career, I was just 1 year old. 28 years हो गया तो फिर I cannot say ना what my real age. Correct. But I am a very real person and I live a real life, and that's why you can catch me kind of smiling. It's a little funny that I'm sitting here, I'm a chief guest and all. And 5 minutes ago I was on the street, getting an auto and trying to tell my kids, you sit quietly, I'm coming, and you don't. So I think real life is very important. Real life, okay? Yes, this is a beautiful honor that I could be a part of this. When it comes to mental health issues, what I would like to say is कि हम सब पागल हैं. हम सब कहीं ना कहीं. Exactly. And अगर हम पागल नहीं हैं by chance, तो हम पागल हो जाएंगे इस दुनिया में रह के. Now comes on a more kind of lighter note. But seriously speaking, I think all of us with the pandemic did kind of realize a lot of things about life. कि लाइफ जो है उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते. एक एक पल में कभी भी एक एक सांस का भरोसा नहीं है. कभी भी कुछ भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है. यू वांट इंग्लिश, हिंदी, पाले फ्रांसे, पंजाबी आंधी है. So mental health is something we all face. I have 2 boys, Krishna and Vishnu. आप चाहेंगे कि और भी लोगों का सपोर्ट मिले इस इनिशिएटिव के लिए? डेफिनेटली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं, वी ऑल ह्यूमंस आर वर्किंग, वी आर वर्किंग ऑन आवर फिज़िकल बॉडी. ओके, हम फिज़िकल बॉडी के लिए जिमिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं. ओके, वॉकिंग करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट टू कीप फिज़िकली फिट. लेकिन व्हाट अबाउट योर इमोशनल एंड मेंटल बॉडी? जब तक आप अपने इमोशनल और मेंटल बॉडी को फिट नहीं करेंगे, आप जितना चाहे फिज़िकल एक्टिविटी कर लो, आपकी फिज़िकल बॉडी तो ठीक हो जाएगी लेकिन मेंटली ठीक नहीं होगा. एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़ इन योर बॉडी. ओके, दैट वो जो पाइल अप इमोशंस होते हैं ना, वो ही क्रिएट करते हैं आपको कैंसर, अस्थमा, अल्जाइमर, जो भी आप बीमारियां बोलो, वो सब आपकी इमोशंस ही क्रिएट करते हैं. तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम आज के दौर में भी हम रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं. हम लोग फिज़िकली पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और बहुत कंफर्टेबली इमोशनल और मेंटल बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए. वी हैव टू वर्क ऑन आवर फिज़िकल एंड मेंटल बॉडी, और वो जो फिज़िकल बॉडी है वो अपने आप ही ठीक हो जाती है मेंटल एंड इमोशनल को अगर ठीक करें तो. So I would want to give a message to a lot of people who are watching this show and the event that we are doing on the 23rd of April in Radio Club, which is WOW Mental Health and Alternate Therapies Summit and Awards. I would really request support and donations and donors to come forward to support this event so that we can take this awareness to the next level. We can do a lot for the society, but without the support, it's not possible. So I encourage and I request a lot of people to join this, event on 23rd and come and help us support. Besides that, Iram Entertainments has been playing a major part in this event. She is our powered by sponsor. She is Iram Faredi. And when I had explained the concept to her, without a second thought, she definitely came forward and she said, I will do the powered by sponsor. I said, most welcome to do it, because it is a cause, it needs awareness, it needs to spread. Alright, so जब एक के साथ दूसरा जुड़ता है, एक कारवां बनता है और वो कारवां से ही सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट होता है. ऐसी मेरी सोच है. तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने इमोशनल और मेंटल बॉडी पे फोकस करें
ना कि हम फिज़िकल बॉडी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी अगर आपका मेंटली फिट है। आप मेंटली फिट हैं तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी तो वैसे ही ठीक होनी है। लेकिन आप फिज़िकल जितना चाहे मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लो, जितना चाहे वर्किंग कर लो, बॉटम लाइन इज़ कि आप डिजीज़ से भाग नहीं सकते हो। आप डिजीज़ से तब तक भाग नहीं सकते हो जब तक आपके अंदर का कचरा क्लियर नहीं हुआ है। और वो अंदर का कचरा ही क्लियर करने के लिए ये अवेयरनेस है कि हम इमोशंस से बाहर आएँ। पैंडमिक ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। बहुत लोग जो हैं वो लोग ने अपने लव्ड वंस को खोया है। बहुत सारे लोग लोनली हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को अल्जाइमर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो रहा है। सुइसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। क्यों? स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, इसके लिए मेडिटेशन पे फोकस करना है, इसीलिए अपने इमोशनल और मेंटल वेलबींग पे फोकस करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी हैं। बच्चों को भी स्ट्रेस होता है स्टडीज़ का। पीयर प्रेशर इतना बढ़ गया है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक पीयर प्रेशर। उसके कारण कितना स्ट्रेस लेते हैं हम किस लिए स्ट्रेस ले रहे हैं? अपनी सेहत को ख़राब करने के लिए? तो वो नहीं लेना है हम। आई कम्प्लीटली एग्री। मैं बिल्कुल इसीलिए कोशिश करती हूँ जितनी चीज़ों में से निकलूँ मैं एज सिंपल लाइफ एज पॉसिबल। यस, मिनिमलिस्टिक लिविंग। Yeah, I have time to walk, I have time to be with my children. फिर भी टाइम नहीं मिलता है, फिर भी इतने काम रहते हैं. So as much as we can get out of materialism and we can live simply, then we will be less stressed and we'll have more time for the quality in life. Yes, I would certainly, want to create this awareness big time in the society. आप क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है कि सोशल कॉज को हमेशा से आप सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। जैसे मैंने मेंशन किया कि 2 साल में पेंडेमिक देखा हम लोगों ने, बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, सुशांत सिंह राजपूत से लेके जितने भी लोग थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था टू कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट दिस कॉज? First of all, I would like to thank Shobha Arya ji for this award shows mental health summit जो आप create आपने किया है. Thanks to Ruby ma'am also. I am meeting her first time in my life. मैंने उनको देखा है हमेशा टीवी पे and she is a pure soul for me and thanks to रेणुका जी because आप यहाँ तक लेके आए. क्योंकि जो मेरे जो पैटर्न है, जो मेरा बेस है, वो मैं कभी नहीं भूलती. तो दिस इज़ माई ड्यूटी टू गिव थैंक्स टू यू ऑल. और मैं एक चीज़, आपने मुझसे पूछा, मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि आप सोसाइटी में देखिए, आपको साइकेट्रिस्ट की क्लिनिक और बहुत से ऐसे हीलिंग की क्लिनिक बहुत कम मिलेंगी रेदर देन फेस का, इसका, उसका, जिम, ये बहुत सारे हैं. वी आर टेकिंग दैट इनिशिएटिव. आई वांट दैट पीपल शुड कम स्टेप अहेड और ये करें. लोगों को करना चाहिए कि इस टाइप के अवार्ड कितने हैं. हम फिल्म को लेकर, बॉलीवुड को लेकर बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो क्रिएटिविटी है शोभा जी लेकर आए हैं, दिस इज़ रियली वंडरफुल. और एरम्स एंटरटेनमेंट तहे दिल से थैंक यू कहते हैं कि हमें मौका मिला है इस तरीके के समिट में एक बहुत बड़ा पार्ट बनने का. तो मैं यही कहती हूँ लोगों से कि इस तरीके की चीज़ें आगे होनी चाहिए और लोग अपना कॉपरेशन ज़रूर दें. बिकॉज यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ तक पहुँचती है. तो जब हमारा ये क्लीन होगा तभी हम कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर पाएंगे. आपकी पर्सनालिटी बनती है. एंड आफ्टर दिस शो मैं शोभा जी से पर्सनली मिलने वाली हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत तकलीफ़ें हैं लाइफ में. तो अगर कुछ अच्छा कर लिया जाए इसी बहाने तो इससे अच्छा क्या होगा. शोभा आर्या मैम के साथ के एसोसिएशन के बारे में बताइए और इवेंट के लिए कितने एक्साइटेड है आप लोग? मैम से स्टार्ट करते हैं. मैं हूँ प्रोफेसर रेणुका बांगर फ्रॉम RR इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनालिटी एनहांसमेंट. मेंटल हेल्थ की जब बात होती है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली टोटली रिलेटेड टू योर इनसाइड एंड आउटसाइड पर्सनालिटी. शोभा आर्या के वाओ क्लब के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है. इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड रीमा. जुड़े, इनको जाना, इनको समझा, इनके विजन को जब मैंने देखा और महसूस किया, आई अंडरस्टूड वन थिंग. This lady is out to create history. She is the queen maker and we are blessed to be with you. देखिए, बहुत सारे लोग इवेंट करते हैं, बट इवेंट के पीछे का कारण समाज में एक बदलाव लाना. एंड शोभा आर्या इस समिट के द्वारा, जहाँ पर बहुत सारे थेरेपिस्ट, प्रोफेशनल्स, ईदर फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, बी इट हीलिंग, बहुत सारे तांत्रिक विद्या भी हैं, इन लोगों के बारे में समाज तक एक मैसेज जाएगा.
एक डिस्कशन होगा पैनल पर, हम लोगों से सवाल किया जाएगा। जैसे मैं हूँ एडुकेशनिस्ट, देयर इज़ एन एस्ट्रो फिजिशियन, देयर इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, अ फार्मिस्ट, अ टैरो रीडर। ये लोग मेंटल हेल्थ के साथ किस तरह से जुड़े हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, समाज में इन लोगों के बारे में बहुत कम जाना जाता है। ये लोग अपने तरीके से काम करते हैं। शोभा आर्या ने इन लोगों को फॉरवर्ड लाकर समाज से मिलाने का ये बहुत बड़ा कार्य किया है, विच इज़ कमेंडेबल। और बहुत अच्छा लग रहा है इनके विजन के साथ जुड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान के अंदर एक नीड होती है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी इमोशनल जर्नी, अपनी फिजिकल जर्नी के साथ जुड़ते हुए एक बेहतरीन इंसान बना दिया जाए। सो वेरी ग्रेटफुल टू यू शोभा। थैंक यू, थैंक यू। सर आप क्या जब मुझे अप्रोच किए शोभा जी ने इसके लिए, फिर मैंने देखा हेडलाइन क्या है। सो दिस काइंड ऑफ शो इज़ वेरी रेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल बॉडी के लिए हम लोग जो भी एंटरटेन लेते हैं दैट्स फॉर फिज़िकल बॉडी, एंड सम पॉइंट मैं बोलता हूँ लाफिंग के बाद अगर आता है तो ये जो कर रहे हैं मेंटल हेल्थ एंड सपोर्ट के लिए, दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे इसलिए पिछले में आप क्वेश्चन पूछे थे कि बॉलीवुड में बहुत सारे सुसाइड केसेस हुए, बहुत सारी चीज़ हुए, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी मेरे पास आए थे लाइक लॉकडाउन के दौरान कि देवव्रत कुछ कलर थेरेपी करो जिसके दौरान हमारा मेंटली स्टेबिलिटी हो। किसका फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, किसी का फैमिली में डिस्टर्बेंस है, कोई सेपरेट रह रहा है, दे हैव सो मच डिस्टर्बेंस। ऐसा नहीं कि एक जगह से डिस्टर्बेंट हो सकता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता है। सो मेन चीज़ है कि हमारा जो बोलते हैं मन आत्म तत्व, सो इट्स अ वेरी टिपिकल क्लिष्ट हिंदी आत्म तत्व। सो मन का अगर रूट को हम क्लीन करते हैं, उसको अगर हम प्योर करके रखते हैं, देन अपर लेयर ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। अभी क्वेश्चन था शोभा जी के साथ एसोसिएशन का, मैं डेफिनेटली उसके बारे में बात करूंगी, बट सिंस एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एनर्जी, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी दैट एवरीथिंग विद इन अस अराउंड अस इज़ नथिंग बट एनर्जी। हम सब बने ही ऊर्जा से हैं, and we all are connected with each other in the subconscious space in different time span, right? तो काफ़ी बार होता है आप कोई जगह पे एंटर करते हो, आपको वो जगह बहुत पसंद आती है, इट मे बी अ वेरी स्मॉल हाउस, दैट्स ओके, बट उसी तरह कोई लग्जरी अपार्टमेंट में जाओगे तो आपको वो कंफर्ट नहीं फील होता। सो बाय डिफॉल्ट एनी लिविंग बीइंग, बी इट ह्यूमन, बी इट योर पेट, बी इट अ प्लांट, प्लांट्स की हम बात कर रहे थे, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब आईने के सामने खड़े होते हो, व्हाट डू यू फील अबाउट योरसेल्फ? डू यू फील आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, ओ आई एम नॉट लुकिंग गुड इनफ, ओ आज तो मुझे लेट होने ही वाला है? बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स इन द माइंड फर्स्ट एंड देन इट हैपन्स इन रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। आई एम श्योर आप सब अग्री करोगे, और जो हमारे पैटर्न ऑफ थॉट्स है वही उसको मैनिफेस्ट रियलिटी में करते हैं। So coming back to the question, talking about Shobha, such a wonderful soul, I must say, despite of her own struggle journey during pandemic, जिस तरीके से उन्होंने अपने situations को solve करते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है through this award and summit that's happening on 23rd April, it is fabulous. Because we get so many cases where people are in the self-victim mode, नहीं निकलना चाहते उस चीज़ से बाहर, लेकिन शोभा इज़ soared high, I must say, and she is a great inspiration for many women out there. और जिस तरीके से आप देख रहे हो दैट द मेंटल हेल्थ समिट इज़ नोन एज वाव, इट स्टार्ट्स विद वाव। सो आज से जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, यू नो व्हाट यू हैव टू से टू योरसेल्फ, वाव। ओके, लेट्स कीप दैट फेथ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Anup.